So, my dear students, Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Morning, sir. Sir is good afternoon. okay, my dear students, I welcome you in today's session. DS, yesterday, most of the students were accumulated in school campus, checking their LOC. But today, most of the students are with me. Students, yesterday I had started सर new LOC chapter, के लिए गए the 100 dresses. Please don't talk about LOC. If you want to know anything related to LOC, please contact with others in your school institution. Bete, don't mind. The 100 dresses part 1, written by A. Zorister. I have Sir, mentioned. Yeah. sir, poetic devices नहीं बताएंगे. Yeah, I will tell you poetic devices. Not today, because I'm not in the mood of telling. Next day I will tell you better. Next day means other day of Monday. The 100 dresses I had started yesterday. I'm going to tell for those students who were absent yesterday. Actually, this chapter is about this story is about a little young girl named Wanda Petronsky. The little girl comes from a lower society. She lives in America. She's a Polish girl. And she used to go in the school of America. She used to wear rags dresses, means not new dresses. But the chapter name is the 100 dresses, means उस छोटी बच्ची से कोई पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ड्रेस है, तो वो बोलती है कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेस हैं. 100 ड्रेसेस, आई हैव 100 ड्रेसेस. वह ये दावा करती है कि मेरे पास 100 कपड़े हैं, 100 ड्रेस हैं. बट तो जब दावा करती है तो ये बात सही है कि गलत है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है. परंतु दूसरी बात ये है, on the one hand she is saying that she has 100 dresses, while on the other hand she is wearing same dress for a long time. बहुत दिनों से एक ही वस्त्र वो पहन करके स्कूल में आती है. और in 13 number room she sits, and what is her place? She sits on the last bench of the class. सबसे पीछे वाले बेंच पर उसका सीट है, वहां पर बैठती है. Two girls of the same class, means her two classmates, Peggy and Maddie, उसका खूब मजाक उड़ाती हैं. अब आगे क्या होता है, प्रतिदिन उसको कहती हैं बताओ बताओ तुम्हारे 100 ड्रेसेस कहाँ हैं. ओहो, once again you are in the school with old dress, and per day you say that you have 100 dresses. Where were your 100 dresses? Where are your 100 dresses? इस तरीके से उसका मजाक उड़ाती हैं.
वो दोनों बच्चियां। तो बेटे यही हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो कल जो प्रेजेंट था, क्या उसमें से कोई मुझे बताएगा कि कहां से हम लोगों को पढ़ना है? पेज नंबर 65। बेटे स्नेहा एक लाइन पढ़ो। सर जो ओरल कॉम्प्रिहेंसिव चेक है ना, उसके नीचे वाला। ओह या ये वाला बता दिए सर, कल ओके एब्सेंट बेटे। थे। मतलब पहले वाला फिर बताऊं? यस सर, कल एब्सेंट। बेटे मैं तो वही आपको बता रहा था सर सर कल पॉलिश गर्ल में जो कल मैंने बताया था, वही तो बताया हूं आज। अब अगर आप कहें तो आगे बताऊं, नहीं तो फिर दोहराऊं। आगे बताइए सर। आगे वांदा पेट्रॉन्स्की ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक पहले के बाद हम पढ़ रहे हैं। वांदा पेट्रॉन्स्की, most of the children in room 13 didn't have names like that. They had names easy to say, like Thomas, Smith, or Ellen. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky was. Wanda came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the warm, hard ground. Wanda Petronsky. Some people pronounced this word Vanda. In your hell book, it is given Vanda Petronsky. You can say Wanda Petronsky. Wanda Petronsky. Most of the children in room 13 didn't have name like that. वांडा पेट्रांस्की की तरह का नाम उस पूरे 13 नंबर कमरे में किसी का नहीं था। बहुत ही अजीब अद्भुत नाम है ये। एक्सक्यूज मी बेटे, हाँ गर्ल्स उसी में लिखना है, हाँ उसी में लिख देना है। हाँ बोलिए, सबका इसी में चढ़ा लीजिए जी। तो बेटे वांडा पेट्रांस्की की तरह का कोई नाम उसमें था नहीं। जितने सारे बच्चे उसमें पढ़ते थे 13 नंबर कक्ष में, किसी का नाम ऐसा नहीं था। They had names easy to say like Thomas, Smith or Ellen. All the students of the class didn't have the name like Wanda Petronsky. They had simple names as Smith, Thomas, Ellen, Mellon. इस तरीके का जो सरल नाम है जिसको आसानी के साथ लिया जा सकता है, ऐसा नाम जो है और सभी बच्चों का था। There was one boy named Bounce. केवल एक ही लड़का था उस कक्षा में जिसका नाम जो था वो बाउंस था। Willie Bounce, and people thought that was funny. Bounce नाम था, his name was Bounce. तब ये भी सब सिंपल नेम है, लेकिन फिर भी लोग कहते थे कि ये फनी नाम है, बड़ा ही फनी मजाकिया नाम है। But not funny in the same way that Petronsky was. मतलब पर उस तरह मजाकिया नहीं था जिस तरह की वेंडा पेट्रॉन्स्की था। ये मजाकिया था लेकिन कम था। वेंडा पेट्रॉन्स्की कुल मिलाकर के लेखक साहब ये बताना चाहते हैं, द राइटर वांट्स टू से यस की वेंडा पेट्रॉन्स्की was a funny name for all the students who were reading in 13 number class, 13 number room. 13 नंबर कमरे में जितने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते थे उन सब के लिए ये बड़ा ही फनी नाम था, वेंडा पेट्रॉन्स्की। बेटे हमारे यहाँ भी कुछ इस तरीके के नाम होते हैं तो हम लोग मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। I can't give you example. बेटे don't forget that I belong from the same society.
फ्रॉम विच यू बिलोंग ऑल्सो, मैं भी उसी सोसाइटी से बिलोंग करता हूं जिससे आप, तो मैं कहीं से भी आपसे कम नहीं जानता हूं मजाक के क्षेत्र में। तो हम भी बहुत मजाक उड़ाए हैं, और आप भी इस तरीके का कोई नाम आ जाता है तो आप मजाक उड़ाते ही हैं। खैर, वंदा केम टू स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन। मुझे लगता है कि पूरे स्कूल में वो एक ऐसी बच्ची थी जो अकेले आती थी और अकेले जाती थी। शी यूज्ड टू गो बैक फ्रॉम स्कूल एलोन एंड शी केम टू स्कूल, शी यूज्ड टू कम टू स्कूल पर डे एलोन। वह अकेले आती थी और अकेले जाती थी। She always wore a faded blue dress. Oh, wore, wear or worn. This is the second form of wear verb. She always wore, वो हमेशा पहनती थी, a faded blue dress. Faded means जिसका रंग, जिसका कलर जा चुका है, जो एकदम एकदम मुरझाया हुआ सा हो गया है। ब्लू ड्रेस, एक ब्लू रंग का उसके पास ड्रेस था जिसका कलर वगैरह सब लगभग जा चुका था। That didn't hang right. मतलब जो उसमें फिट भी नहीं होता था, वो जब पहनती थी तो उसमें फिट नहीं होता था, या तो वो बड़ा था या तो वो छोटा था। इट वॉज क्लीन, लेकिन एक बात होती थी, द ड्रेस जो भी वो पहनती थी वो क्लीन होता था, साफ सुथरा। बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। लेकिन देखने से ऐसा लगता कि इसको कभी आयरन नहीं किया गया है, कभी इस्त्री नहीं किया गया इसको। She didn't have any friends. बेटे ध्यान दीजिएगा, She didn't have any friends. कोई उसका मित्र नहीं था। But a lot of girls talked to her. लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातचीत करती थी, लेकिन कोई उसका मित्र था ही नहीं। मतलब ये, इसका मतलब क्या है, वह बिना जरूरत किसी से कुछ नहीं बोलती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the warm hard ground. हॉपस्कॉच मालूम है आपको क्या होता है? लड़कियां अक्सर खेलती हैं, लड़के नहीं खेलते हैं इस खेल को। बित्ती बित्ती खेलते हो आप? जस्ट आई एम आस्किंग टू द गर्ल्स। एक एक पांव उठा करके और एक पर चल के जाना होता है कुछ दूर तक। यस सर। खेलते हो खेल? यस सर। हाँ, तो उसी को हॉपस्कॉच कहते हैं, है ना। अब उसको क्या हम लोग बोल लेंगे? लंगड़ी, लंगड़िया खेलना। चलो लंगड़िया खेलते हैं। आई नो हाउ टू प्ले ऑल्सो। तो बेटे, दे सराउंडेड हर इन द यार्ड। कभी कभी तो स्कूल के यार्ड में सब लड़कियां उसको घेर लेती थी। एज सी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वार्म हार्ड ग्राउंड। क्योंकि वह सभी लड़कियों को लंगड़ी खेलते हुए देख रही होती थी। जब वो देखती थी खेलते हुए तो सब उसी को घेर लेती थी और फिर मजाक करना शुरू कर देती, मजाक उड़ाना शुरू कर देती थी। Wanda, Peggy would say in a most courteous manner, as though she were talking to Miss Mason. Wanda, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us how many dresses did you have? Did you say you had hanging up in your closet? Peggy, one of her classmates, who was the monitor of the class, who was very famous among the school students, who was very beautiful. पेगी उसी का नाम है। एक बहुत सुंदर लड़की थी, बहुत तेज भी थी, एक्सीलेंट थी, नंबर भी उसके अच्छे आते थे। पेगी उसको बोलती थी, वेंडा, इन अ मोस्ट कॉर्टियस मैनर, बहुत ही सम्मानजनक ढंग से बोलती थी, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मेशन। मिस मेशन कौन है?
मिस मिशन अध्यापिका हैं जो क्लास रूम नंबर 13 में पढ़ाने के लिए आती हैं। तो वेंडा से वो कभी कभी तो ऐसे बोलती थी जैसे वो अपने टीचर से बात कर रही हो। बोलती थी कि वेंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। वो कहती कि अपनी दोस्त को धीरे से दबाते हुए, नज करते हुए, पेगी मेडी को दबाते हुए बोलती थी कि रुको जरा इसका मजाक उड़ाते हैं। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट? सबके सामने पूछती थी कि वेंडा एक बात बताइएगा जरा, कितना ड्रेसेस आप अपने क्लोसेट में रखी हुई हैं? आप एक दिन बता रही थी 100, वेंडा सेड। वेंडा बोलती थी कि 100 पूरे। I have 100 dresses. 100? Exclaimed all the little girls incredulously. And the little ones would stop playing hopscotch and listen. और वो सभी की सभी छोटी लड़कियां लंगड़िया खेलना बंद करके और सब लोग आश्चर्य में ये बात बोलने लगती कि 100, वाओ, व्हाट अमेजिंग, वाओ, इट्स रियली अमेजिंग. A girl like you is having 100 dresses in your closet. Wow, it's really amazing. ये तो really amazing है. 100 ड्रेसेस आपके पास हैं? सभी लड़कियां अपना खेलना बंद करके आकर के सुनने लगती. Yeah, 100 all lined up, said Vanda. Then her thin lips drew together in silence. बस वो इतना ही बोलती थी कि यस, आप सही सुन रही हो, यू आर लिसनिंग राइट, आई हैव 100 ड्रेसेस. मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब लाइंड अप हैं, सब लाइन से टंगे हुए हैं. व्हाट आर दे लाइक? ऑल सिल्क, आई बेट, सेड पेगी. या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, वेलवेट टू. What are they like? Peggy, one of her classmates asked to her. पूछती थी वेंडा, एक बात बताओ, किस तरीके के वो सभी ड्रेसेस हैं? क्या सभी के सभी सिल्क के हैं? तो वो बोलती थी हाँ, सब सिल्क के हैं और सभी कलर में हैं. वेलवेट टू. पेगी पूछती थी कि वेलवेट, मखमली भी हैं? या वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस, वैंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली, ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट. वो बोलती थी, सख्ती से बोलती थी, हॉर्डली, कि तुमने सुना नहीं, 100 ड्रेसेस हैं, सभी कलर में हैं और सभी सिल्क के हैं और सभी लाइंड अप हैं हमारे क्लोसेट में. तुमको मजाक लग रहा है? बस इतना बोल के वो सीरियस हो जाती. देन दे वुड लेट हर गो एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू shrieks एंड pearls ऑफ laughter. तब वे उसको जाने देती. इतना सुनने के बाद, ये मजाक नहीं तो क्या, एक ही प्रश्न रोज रोज, इतना सुनने के बाद जो है उसको वो जाने देती, ठीक है जा. और तब इससे पहले कि वह दूर चली जाती, वे सभी जोर से हंसती और हंसने लगती और चिल्लाने से रह नहीं सकती थी. जैसे ही वो जाती वहां से, सब की सब हंस पड़ती. लायर गर्ल. Per day she says that she is having 100 dresses in all colors, all silky, and they are hanging, they are lined up in her closets, but she tells a lie. Liar कहीं की झूठी. रोज बोलती 100 ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, और रोज वही मैला कुचैला पहन करके आती है झूठी के. 100 dresses? Obviously, the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. Why did she say she had 100? What a story. लाइन लगेगा तो On the one hand, please, bete Rishabh Raj Singh, please mute yourself, bete. Then I can teach you. Please, Kripa Sankar,
प्लीज बेटे म्यूट योर सेल्फ. मिस्टर कृपा शंकर प्लीज म्यूट योर सेल्फ बेटे. शंकर Hundred dresses, obviously the only dress Vanda had was the blue one she wore every day. So why did she had 100? What a story. अब यहां से अभी तक तो आपने सुना कि किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाता. On the one hand, she used to say that she is having 100 dresses and they are lined up in her closets in all colors and all silky. But on the other hand, she is wearing the same dress per day for a long time. What is the story behind this? क्या मतलब है, क्या वो स्टोरी है, इसके पहले इसके पीछे क्या कहानी है भाई. एक तरफ वो कहती कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और दूसरी वो बात ये थी कि वो एक ही ड्रेस रोज रोज पहन के आती थी. तो मजाक तो बनता है, सभी लोग मजाक उड़ा सकते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, now we have to find that what is the back story, what is the story behind this. Let us find out. How many shoes did you say you had? 60 pairs. एक तो झूठ आपने सुना ना, ये 100 ड्रेसेस हैं. अभी आप सुन लीजिए. अब एक चीज और उससे पूछा जा रहा है. हाउ मनी शूज डिड यू से यू हैड? लड़कियां उससे पूछती, हे वांडा, तुम कितना बता रही थी, कितने जोड़ी जूते तुम्हारे पास हैं? तो वो बोलती थी 60 पेयर्स. 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माय क्लोसेट्स. एक तो नहीं, 60 जोड़ी जूते मेरे पास हैं और सब के सब लाइन से लगे हुए हैं मेरे क्लोसेट में. Cries of exaggerated politeness greeted this all alike. Oh, तो exaggerated, excuse बेटे, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो बोलो. Thank you, बेटे. Cries of exaggerated politeness greeted this. Means बढ़ा चढ़ा करके की गई विनम्रता की चीखें निकलती. सभी एक जैसे, सभी एक जैसे. Oh no, every pair is different, all colors all lined up. सब लड़कियां मजाक उड़ाती, वो 60 जोड़ी जूते जो तुम्हारे पास हैं वो सभी तो एक जैसे होंगे ना, सब की सब एक जैसे होंगे. तो वो कहती, ओ नो, हर एक जोड़ी अलग से है, सबके रंग अलग अलग हैं, सारे जचे हुए हैं, ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, सब के सब लाइन से रखे गए. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Vanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then. In the funny was she had finishing the walk to school alone. Bete, here, before further reading, I myself can't prevent to tell you. मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं आपको बताए बिना कि वो कहानी क्या थी. वैसे तो हम लोग पढ़ रहे हैं. एक्चुअली बेटे, आप खुद भी सोच सकते हैं कि भाई वो 100 ड्रेसेस वो कह रही थी मेरे पास है, समझ में नहीं आता है.
एक्चुअली वांडा पेट्रांस्की वाज अ गुड आर्टिस्ट, बहुत अच्छी कलाकार थी वो, कला बहुत अच्छा बनाती थी। 100 ड्रेसेस सचमुच में उसके पास तो नहीं थे, लेकिन 100 ड्रेसेस जो है उसने बना करके, कलर करके और सजा करके रखे हुए थे। बस इतनी सी बात थी, कुछ तो था उसके अंदर। और ऐसे लोग बेटे सचमुच में बड़े सीरियस होते हैं। तो पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पेगी जो इस खेल में पारंगत हो चुकी थी, एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, मैडी जो थी, जो उसकी इंसेपरेबल फ्रेंड थी, बहुत क्लोज फ्रेंड थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव। मतलब ये दोनों जो है सबसे अंत में स्कूल से जाती थी, सबसे बाद में स्कूल से अपना जाती थी। स्कूल की जब छुट्टियां हो जाती, सबसे अंत में ये दोनों बच्चियां जाती। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, finally Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. वेंडा गली से होते हुए जाती थी और सबसे अंत में दोनों बच्चियां ये जाती थी, और सबसे अंत में फाइनली एट द 11th आवर वेंडा स्टार्ट टू मूव फ्रॉम स्कूल। सबसे अंत में वेंडा चलती और चलते चलते जाती, अपने गली से होते हुए जाती। उसकी आंखें एकदम नीरस, उसका मुंह जो है एकदम बंद, अपने लेफ्ट शोल्डर को मजाकिया अंदाज में इधर उधर करते हुए, उचकाते हुए, और अकेले चली जाती। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पेगी वास्तव में एक निर्दयी लड़की नहीं थी। शी वॉज अ सिंसियर गर्ल, बट वो मजाक उड़ाने में बहुत आगे थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। एक उसके अंदर क्वालिटी थी, शी प्रोटेक्टेड, वो सहायता करती थी, वह सुरक्षा प्रदान करती थी, स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को, फ्रॉम बुलीज। बुलीज मीन्स जो शरारती बच्चे होते हैं, उनसे उनकी वो रक्षा करती, उनको डांट देती। And she cried for hours if she saw an animal mistreated, और वह घंटों तक रोती थी। If any, sorry, and she cried, and she cried, वह चिल्लाया करती थी। For hours if she saw an animal mistreated, if anybody had said to her, अगर कोई उससे मिसट्रीट करता था तो वो जो है बोलती भी थी। नेक्स्ट, कि कोई पशु के साथ दुर्व्यवहार होता हुआ देखती थी, किसी भी पशु के साथ, किसी एनिमल के साथ दुर्व्यवहार होता हुआ देखती थी तो वो रोती रहती थी भैया। ऐसा नहीं था कि सी वॉज नॉट हैविंग हार्ट, उसके पास तो दिल ही नहीं था। She would have been, no, don't you think that is a cruel way to treat Wanda? क्या तुम नहीं सोचती कि इस तरह वेंडा से व्यवहार करना निर्दयता है? If anybody had said to her, यदि किसी ने भी उससे यह बात कहा होता कि don't you think that is a cruel way to treat Wanda, कि वांडा के साथ तुम जिस तरीके का व्यवहार करती हो वो गलत है। She would have been very surprised, cruel, अगर कोई कहता तो बहुत हैरान होती, वो कहती कि क्रूएल, कहां से मैं निर्दयता के साथ बातचीत करते हुए दिखती हूं। इसका मतलब कि वेंडा पेट्रांस्की के साथ जो कुछ भी वो करती थी
उसके अनुसार वह ठीक करती थी। तो she would have been surprised cruel. Why did the girl say she had 100 dresses? वो कहती कि वो लड़की झूठ क्यों बोलती है? Why she says always that she has 100 dresses? क्यों वो हमेशा कहती है कि 100 ड्रेसेस उसके पास हैं? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? मतलब कोई भी तो ये बता सकता है कि वह एक झूठ था। Peggy wanted to know कि क्यों, why, क्यों she tells always a lie, वो क्यों हमेशा झूठ बोलती है? बस she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. और वो केवल एक साधारण लड़की नहीं थी, अन्यथा उसका नाम ऐसा क्यों था? वो पूछती कि उसका नाम ऐसा क्यों था? चलो कोई बात नहीं। Anyway, खैर, they never made her cry. वो कभी उसको रुलाती नहीं थी। कौन? पेगी। तो भैया नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मनी ड्रेसेस and how many hats and how many this and that she had was bothering her. Maddie was poor herself. She usually wore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. Peggy की जो inseparable friend थी Maddie, on the one hand, Peggy belonged to a family which was upper class family, while on the other hand, Maddie, her inseparable friend, belonged to a lower family like Wanda Petronsky. वो भी मध्यम वर्गीय परिवार से थी, नॉट मध्यम वर्गीय परिवार, वो निचले तबके की सोसाइटी से वो भी थी। एज फॉर मैडी दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग, मैडी के लिए ये जो पूछने का कार्य था वांडा से प्रतिदिन कि कितने ड्रेसेस तुम्हारे पास हैं, कितनी टोपियां तुम्हारे पास हैं, और ये कितने हैं, वो कितने हैं, ये जो पूछने का कार्य था, इट वॉज वेरी टफ फॉर मैडी बिकॉज मैडी हरसेल्फ बिलोंग अ लोअर सोसाइटी। अब चूंकि वो अपने मित्र, अपनी इनसेपरेबल फ्रेंड पेगी के साथ रहती थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। लेकिन हर्टली शी डिडंट वांट टू बॉदर एट एनी कास्ट वेंडा पेट्रोन्स्की। वो नहीं चाहती कि वेंडा पेट्रोन्स्की से किसी तरीके का सवाल पूछा जाए। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स, क्योंकि मैडी के जो कपड़े हुआ करते थे ना, वह हमेशा सेकंड हैंड के होते थे, कोई पहन करके और दे देता था, वही वो पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन्स हाइट्स और हैव अ फनी नेम। शुक्र था कि वो बोगिनस हाइट पर नहीं रहती थी, या उसका नाम कोई मजाकिया नहीं था। कि मैडी अपने से सोच रही थी कि अरे बहुत अच्छा हुआ कि मैं उस सोसाइटी में पैदा नहीं हुई और मेरा कोई मजाकिया नाम नहीं है, नहीं तो ये पेगी मुझे भी नहीं छोड़ती। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Sometimes, कभी-कभी तो ऐसा होता था, कई बार तो ऐसा होता था, when Peggy was asking Wanda those questions, Wanda जब उन प्रश्नों को पूछती थी, Peggy Wanda से उन प्रश्नों को पूछती थी कि how many shoes you are having, how many कलरफुल ड्रेसेस यू आर हैविंग, मतलब ये कौन सामान कितने की संख्या में तुम्हारे पास है। तो
Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. उस समय मैडी जो थी अपने आप को वहां से बाइकआउट कर लेती, खड़ी वहीं रहती लेकिन मेंटली वहां से हट जाती। वह कंचा जो है अपने हाथ में, बहुत शर्म महसूस करती। वो नहीं चाहती थी कि पेगी हमारी जो इनसेपरेबल फ्रेंड है वो वैंडा से कुछ इस तरीके की बातों को पूछे। वो चुपचाप खड़ी रहती थी। और नॉट दैट शी फेल्ड सॉरी फॉर वांडा, एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. But suppose Peggy and all the others started it on her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. ऐसा भी नहीं था कि वह वेंडा के लिए खेद महसूस करती थी, लेकिन वो अंदर से नहीं चाहती थी कि उसका कोई मजाक उड़ाए। वह वेंडा की तरफ कभी ध्यान नहीं देती यदि पेगी ने यह पोशाकों वाला खेल नहीं खोजा होता तो। परंतु सोचिए, बट सपोज यदि पेगी और औरों से उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो, पेगी और औरों ने उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो, क्योंकि वो भी किसी दूसरे के का दिया हुआ ड्रेस पहनती थी, तो क्या होगा? वह इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वेंडा भी, शायद वह गरीब जरूर थी। मैडी इतनी गरीब नहीं थी, लेकिन फिर भी गरीब थी। अवश्य ही उसमें इतनी समझ तो थी कि वह यह कहने की बजाय उसके पास कितनी 100 ड्रेसेस हैं कुछ और कहती, पर वह नहीं चाहती कि उसके पीछे लोग कहीं सोचने पर विवश हो जाए कि छोड़ो इसका मजाक उड़ाना, वेंडा का मजाक उड़ाना छोड़ो, लेट्स फन विद मैडी। एक्चुअली इस पैराग्राफ का मूल पर्पस जो है वो ये बताना है कि मैडी रियली वांटेड नॉट टू मॉक विद वेंडा पेट्रॉन्स्की। वेंडा पेट्रॉन्स्की का मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। नीदर शी वांटेड नॉर अदर्स, नॉर बाय अदर्स। वो नहीं चाहती थी कि कोई दूसरा भी उसका मजाक उड़ाए। भाई सब अपने फेवर में अपना ही फेवर लेता है। हंसिया कितना भी टेढ़ा हो तो अपनी तरफ ही खींचता है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, question answer oral comprehension check 2 we have finished, and we have to discuss next day about these question answers, and then we will further study. So thank you very much, and thank you my dear students for today. Have a good day. If you have any type of doubt, any type of tough word or difficult word, I will talk to you next week. So thank you very much, my dear students. Your school is about to be open as the government has instructed. So wait for some days. Thank you. Thank you so much. Have a good day.